Ceratopteris. Ceratopteris is a aquatic or semi-aquatic fern, is a very common aquatic plant in an aquarium. This aquarium plant not only provide shelter to the fishes but also provides a source of food and very easy to grow. This aquatic fern is in the syllabus of many universities, and today we are going to discuss about Ceratopteris. I am Dr. Antika Das, and in this video I am going to discuss about the overview, morphology, anatomy and importance of Ceratopteris. And in the next part, that is part 2 of the Ceratopteris, I'll be discussing about the reproduction and the life cycle of Ceratopteris. So let's begin the video. So an overview of Ceratopteris. Ceratopteris, it belongs to the division Polypodiophyta. Polypodiophyta. Now, Polypodiophyta, it includes all the cryptogams, that is the uh, vascular plants that reproduce by the means of spores, but not seeds. That is, they are the early vascular plant that do not have any flower, but they reproduce by spores that are present on the lower surface or the ventral surface of the leaf. So division Polypodiophyta includes all the pteridophytes. And then we have class Polypodiopsida. Now we know that this Polypodiophyta, these include both leptosporangiate and eusporangiate forms. So this Polypodiophyta includes both these two type of ferns, that is a leptosporangiate, where sporangia is formed from a single epidermal cell, and in the eusporangiate fern, a group of epidermal cell give rise to a sporangia. So this Polypodiopsida, this one here, Polypodiopsida, this is a leptosporangiate type of fern. That is, it will contain only sporangia, that is from only one epidermal cell. Usually this type of sporangia are much smaller in size, and most of the ferns, they are of this leptosporangiate type. That is, they belong to class Polypodiopsida, most of the ferns. And our fern of interest, that is a Ceratopteris, this fern is also belonging to this class Polypodiopsida. And then we have this order Polypodiaceae. So Polypodiales or Polypodiaceae, this is basically, they have this most of this order ferns, they have a sporangia where the annulus, where the sorry, where, let me draw it again. If this is the sporangia, and then they have a very thick walled annulus that is present vertically. So the annulus will be present like this, and then there will be a very thin walled stromium. So this is the thick walled annulus that is present vertically, and then we have very thin walled stromium, and there will be a stalk. So this is the stalk, and here this is the thick walled annulus,
This is the stromium, and this is the stalk. So all the Polypodiaceae, they have this vertically placed annulus. Some of the species, they have an annulus like this, but that is not the case here. Here we are Polypodiaceae have this type of vertical annulus. Then we have family Pteridaceae. So Pteridaceae, they have a mostly plants of the Pteridaceae. They have a sori, but they have, if this is the leaf, and we know that all the Pteridaceae family, they do not have usually what they have a sporangia at the margin of the leaf, but in most of the ferns, they have a very uh, thin membranous indusium. But here in the Pteridaceae, this family Pteridaceae, they do not have this indusium. They only have is a false indusium that is formed when the leaf is recurved and they protect the sporangia. So this one, this yellow colored thing is the sporangia. This yellow colored is the sporangia, and they are protected by the recurved margin of the leaf. So this is the false indusium. I'm denoting it by Fi. So all the member of this Pteridaceae, they have this family Pteridaceae, they have this false indusium. Then we are seeing the family, subfamily Parkerioidae. Parkerioidae usually contains not usually, but it contains actually one genera, that is the Ceratopteris. Another genera is the Acrostichium, which I'm writing here. Acro. So this is the Acrostichium. So Acrostichium and Ceratopteris, these are the two genera that is included in this subfamily Parkerioidae. So taxonomic position, you should be writing, knowing it by heart, because taxonomic position, whatever be the question, if you write the taxonomic uh, position of any plant, whether the question comes in light about the reproductive, about the life cycle or anatomy, if you just write the taxonomic position, then definitely your marks is going to improve. तो you should be writing the taxonomic position. कोई भी क्वेश्चन आए, taxonomic position लिखना ही है. The common name, इसकी common name Ceratopteris is commonly called water sprite. और जो कॉमन स्पीशीज है वो है Ceratopteris thalictroides and Ceratopteris ricardi, Ceratopteris cornulata, and Ceratopteris reinhardti. In fact, most of the research paper, जो भी research paper है, ये जो Ceratopteris thalictroides पे ही है. कोई भी ज्यादा रिसर्च है तो इस पे ही इस वाली स्पीशीज पे ही है. और इसकी हैबिट क्या है? ये एक मॉडरेट साइज फर्न है, मतलब ज्यादा ट्री फर्न के जैसा बड़ा भी नहीं है और एकदम माइक्रोस्कोपिक भी नहीं है. तो मीडियम साइज, जो अपने आस पड़ोस में जो फर्न है वैसा ही साइज, मॉडरेट साइज फर्न है. और ये क्या है? ये कभी फ्लोटिंग इन वाटर भी हो सकता है या रूटेड टू द मड. मतलब क्या है? डीप वाटर में भी हो सकता है, या इट कैन ऑल्सो ऑकर इन द एरिया सराउंडिंग द वाटर बॉडी. मतलब जो एक जैसे रेवर के बीचों बीच भी अगर मतलब कोई भी स्लो फ्लोइंग रेवर है, तो इसकी एकदम साइड साइड में फ्लोटिंग भी हो सकता है, या इसकी साइड में जस्ट बैंक ऑफ द रिवर में रूटेड भी
हो सकता है। तो it has got two habit, that is either a floating habit or a rooted. जब rooted है तो it can grow in any type of pH, any type of pH। और ये जो है इसकी जो depending upon temperature, generally ये क्या है कि अंडर नेचुरल कंडीशन, मतलब जैसे नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब जो लैब कंडीशन नहीं है, तो वैसे में नेचुरली जब ये ग्रो करता है तब ये एनुअल जैसा बिहेव करता है। मतलब जल्दी जल्दी इसके स्पोर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ सर्टेन टाइम, इसकी जो मैच्योरिटी हो जाती है, तो जो स्पोर्स फॉर्म है, तो वो स्पोर्स जो है वो शेड होने के बाद जो प्लांट है वो खत्म हो जाता है। फिर स्पोर से दूसरी जनरेशन की प्लांट ग्रो करता है। तो इट इज बिहेविंग एज एन एनुअल अंडर नॉर्मल कंडीशन, वेयर आफ्टर द स्पोर्स आर फॉर्म्ड, मतलब कोई भी लीफ में, कोई भी इसकी जो लीफ है, कोई भी लीफ में जैसे स्पोरुलेशन हो जाती है, तो वो वाला प्लांट धीरे धीरे डाई हो जाता है। और फिर क्या होता है, वो स्पोर से दूसरी जनरेशन क्रिएट हो जाती है। तो इट इज बिहेविंग एज एन एनुअल अंडर नॉर्मल कंडीशन, बट अगर लैब में हम ग्रो करेंगे तो इट इज बिहेविंग पेरिनियल। मतलब लैब कंडीशन में स्पोरुलेशन के बाद भी प्लांट जिंदा रहता है और काफी लॉन्ग टाइम तक ये जिंदा रहता है। तो so it has got a floating and as well as a rooted habit। एंड हैबिटेट क्या है इसकी, एक्वाटिक सेमी एक्वाटिक भी है। एंड कभी भी ये जो वाटर में रूटेड है तो कोई भी पीएच में ग्रो कर लेता है। दैट इज कोई एसिडिक सॉइल हो या बेसिक सॉइल हो या न्यूट्रल सॉइल हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वाटर अबंडेंट होना चाहिए हैबिटेट में, ये। और क्या है, ये इट कैन ग्रो इन फ्रेश वाटर एज वेल एज सलाइन वाटर भी। और जनरली ये प्रिफर करते हैं स्टैग्नेंट वाटर, पर अगर स्लो मूविंग वाटर भी है जैसे रिवर में, तब भी ये ग्रो कर लेता है। और ये एक्चुअली मैन मेड पॉन्ड में भी इसको दिखा जाता है, और स्पेशली जो मैंग्रोव एरिया में भी ये कभी कभी दिख जाते हैं। तो ये सैलिनिटी टॉलरेंट भी है सेराटोप्टेरिस। अभी देखते हैं इसकी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट वी आर सीइंग इज दैट the ceratopteris, it is seen in most of the countries, most of the continent, that is अगर देखेंगे तो अफ्रीका में भी है, ओशनिया में भी है, नॉर्थ सेंट्रल और साउथ अमेरिका में भी है, और एशिया में भी है। सो हम देखते हैं कि ये एशिया में भी है, अफ्रीका, ओशनिया ये वाला पोर्शन, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये मेसो वाला सेंट्रल अमेरिका वाला पोर्शन में भी है। कहाँ पर नहीं है, ये वाले यूरोप पोर्शन में ये एकदम नहीं है। और इंडिया में कहाँ कहाँ है ये, इंडिया में इट इज फाउंड इन दिस रीजन, दैट इज in Tamil Nadu region and also in Kerala. So entire southern India we are seeing the Ceratopteris. और जो है Ceratopteris, it is found also in these many islands, um, and also in this region. Sorry, not this one. Uh, it is mostly found in the in this Madagascar region, also in this Caribbean islands region, and also this region. So हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह पे जहाँ पे भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो Ceratopteris is growing there। बट जो टेम्परेट रीजन है इट प्रेफर्स नॉट ग्रोइंग देयर, क्योंकि जैसे इंडिया एशिया में भी, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में भी Ceratopteris ज्यादा दिखा जाता है। दैट इज यू सी चाइना, जापान, नेपाल, श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, ये सारे जो है ट्रॉपिकल रीजन में ही इसको देखा जाता है। इट इज नॉट फाउंड इन द टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन में इसको नहीं देखा जाता। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ सेराटोप्टेरिस, सेराटोप्टेरिस जो है इसकी एक हॉराइजेंटली ग्रोइंग राइजोम है, जो कि काफी फ्लैशी है, और इट इज ग्रोइंग हॉराइजेंटल टू द ग्राउंड, एंड ऑन द अपर साइड इट इज हैविंग अ लीफ, और
upper leaf there is one root going downward. So upper surface of the rhizome है leaf और lower surface है root. जो rhizome है ये horizontally growing है और ये काफी short and fleshy भी है. कभी कभी ये ascending मतलब थोड़ा ऊपर भी ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे इरेक्ट हो रहा है. और जो है नीचे जो रूट्स है that help in keeping the plant rooted. एंड जो राइजोम है, जो अपना राइजोम है उसके ऊपर ऐसे हेयर की कवरिंग्स है, स्केल लीफ की कवरिंग है. दिस इज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन. कभी अगर जो वाटर बॉडी है वो सूख जाता है तो राइजोम को पेरिनेट करने में ये हेयर और स्केल काफी हेल्पफुल होता है. एंड दिस राइजोम कवर्ड विथ हेयर एंड स्केल इट इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ द ferns. और जो इसकी जो नीचे वाले पोर्शन में रूट है ये काफी फ्लैशी और काफी लॉन्ग रूट है. सो ये वो वाला पोर्शन राइजोम. और हम देख रहे हैं, अगर वी आर लुकिंग एट दिस डायग्राम वी आर सीइंग दैट दिस आर द रूट्स दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम द राइजोम. और जो हम इसके ऊपर वाले पोर्शन देख रहे हैं ये वाला ये है एक्चुअली द लीफ केस टाइप. हम वी नो दैट एनी फ्रॉन्ड जो फर्न के लीफ उसको फ्रॉन्ट बोलते हैं, ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं हम स्टाइप. एंड जो लीफ वाला पोर्शन में पीना के अंदर आ गया है इसको हम बोलते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं हम रैचेस. सो दिस इज द रैचेस एंड this one is the stipe. So the stipe is very thick and fleshy. और मतलब जो पीना जो लीफ वाला पोर्शन के अंदर वाला आ जाता है इसको रैचिस बोलते हैं, और बाहर वाला मतलब जो बेस में है उसको स्टाइप बोलते हैं. और हम देख ही रहे हैं कि ये इधर स्टाइप जो है ये काफी थिक एंड फ्लैशी है. सो जो फ्रॉन्ट्स है मतलब लीफ है ऑफ द सेराटोप्टेरिस दैट इज हैविंग स्टिप्यूल्स. दैट इज कोई भी अगर फ्रॉन्ड के जैसे ये वाला पोर्शन, ये वाला लीफ वाला पोर्शन जो भी है तो इसके जो एकदम एक्सिस में एक लीफी स्ट्रक्चर दैट इज दीज आर द स्टिप्यूल्स. दीज आर द स्टिप्यूल्स. एंड ऐसे वाले लीफ जिसमें स्टिप्यूल्स है उसको बोलते हैं हम स्टिप्यूलेट. सो जो फ्रॉन्ट है तो इस ये स्टिप्यूलेट है और इसकी जो स्टाइप है ये वाली पोर्शन काफी फ्लैशी है. और जो लैमिना है लीफ की, ये जो जैसे ये वाला लीफ है तो ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं हम लैमिना. सो लैमिना जो है डाइमॉर्फिक है. जनरली क्या है एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैव ए एंटायर लीफ. ये है जनरली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. और फर्न में कैसा है, फर्न में हम देखते हैं कि पीना जो है ये ब्रोकन डिवाइडेड है. either it is bipinnate like here, that is bipinnate, or it can be tripinnate like it can be tripinnate like this one. बट इधर में बाइपिनेट ट्राइपिनेट की बात नहीं है. इधर है कि लीव्स आर डाइमॉर्फिक, ये है ट्राइपिनेट. इधर क्या है लीव्स आर डाइमॉर्फिक, मतलब लीव्स जो है दो टाइप के होते हैं. वो कैसे कैसे होते हैं, मतलब एक लीफ तो ऐसे होंगे और दूसरा वाला लीफ ऐसे होंगे. हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. जैसे ये वाला पोर्शन जो ये वाला लीफ है, जैसे जिसकी पीना काफी एक्सपेंडेड है, काफी फ्लैटेंड है, ये वाला है स्टेराइल फ्रॉन्ट. तो स्टेराइल फ्रॉन्ट जो है ये आइदर तो ऐसे बाइपिनेट हो सकते हैं या ट्राइपिनेट हो सकते हैं. जैसे ऐसे ट्राइपिनेट भी हो सकता है. तो ऐसे बाइपिनेट
या ऐसे ट्राइपिनेट हो सकते हैं, पर जो लीफ है इसकी पीना काफी फ्लैटेंड होंगे। सो काफी फ्लैटेंड जो पीना है ये होंगे स्टेराइल, मतलब जिसमें जिसके नीचे स्पोर नहीं होंगे। और इसके जो एक्सिस है, जैसे ये एक लीफ हो गए, उसके जो एक्सिस है ये वाला पोर्शन है, इसमें क्या है एक प्रोलीफेरोअस बड रहती है। तो इसमें क्या है एक प्रोलीफेरोअस बड रहती है। और जो फर्टाइल फ्रॉन्ट है, मतलब जिसके नीचे, जिसके फ्रंट के नीचे जिनमें स्पोर बने होंगे, वो वाले फर्टाइल जो फ्रंट है वो कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे। मतलब जिसकी पीना है ये काफी रिड्यूस्ड होंगे और काफी नीडल शेपेड होंगे। जैसे ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, लेट मी ड्रॉ इट इन रेड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पीना है ये काफी थिन है। मतलब जो मिड रिब है, मतलब जो अपना वास्कुलर बंडल है, उसके थोड़ा इर्द गिर्द थोड़ा सा कुछ पीना है, वो ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं है। So this type of needle-like leaf is found in the fertile frond. पर इधर भी जो frond है, इधर इसकी एक्सेस में रहेगी क्या, एक डोरमेंट या एक कोई प्रोलिफेरस बड। पर ये डोरमेंट या प्रोलिफेरस जो बड रहेगी, इसको ये प्रोटेक्टेड रहेंगे स्केल लीव्स, स्केल लीव्स से इसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि स्केल लीव्स क्या है, इट विल प्रोटेक्ट द बर्ड आइदर डोरमेंट और प्रोलिफरेटिव फ्रॉम डेसिकेशन। इसी दिस इज द फंक्शन ऑफ मोस्टली द स्केल लीफ, दैट इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन। सो इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई, मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ राइजोम, रूट और लीफ हो गई। तो अभी देखते हैं इसकी स्पोरेंजिया और स्पोर की क्या क्या मॉर्फोलॉजी है। मतलब जो ये नंबर ए पे है, ए पे जो हम देख रहे हैं ये वाली जो है फर्टाइल लीफ और ये है स्टेराइल लीफ। सो ये वाली जो फर्टाइल लीफ है इसके नीचे, मतलब ये है फर्टाइल लीफ, sorry, this one is the sterile leaf और this one is the fertile leaf. So fertile leaf के नीचे, मतलब जो एसिकुलर दो नीडल शेपेड फर्टाइल लीफ है, उसके लोअर वाला पोर्शन दैट इज द वेंट्रल सरफेस में क्या है, ये ऐसे एक लाइन में बनी हुई है सारी चोरी। और क्योंकि ये एक्स इंडूसिएट है, मतलब क्या इसकी जो लीफ है वो लीफ में अलग से इंडूसियम नहीं होती है। जो लीफ है वो ही घूम के ऐसे मतलब एक कर्व फॉर्म करता है जो कि प्रोटेक्ट करता है ये जो स्पोरेंजियम को। यहाँ हम देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये मतलब एक्चुअली लीफ जो है अ, उसका ये वाला जो पोर्शन है, यही ये वाला कर्व्ड पोर्शन है। तो दैट इज प्रोटेक्टिंग द स्पोरेंजिया और एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द सोरस। सो द स्पोरेंजिया जो है वो क्या है, नॉट दे आर नॉट एक साथ मतलब सोरस नहीं करते, बट दे आर अरेंज्ड लीनियरली। they are solitary, they are scattered, and they are arranged almost linearly। और एक्स इंडूसिएट मतलब इंडूसियम नहीं होगा, जहां इंडूसियम नहीं होता है उधर प्रोटेक्शन के लिए लीफ कार्व करके जो लीफ मार्जिन है वो कार्व करके ये वाले स्पोरेंजिया को में एक्चुअली कर्व होके स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करता है। फिर क्या है, द स्पोर्स। सो जो ये जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे। सो स्पोर्स कैसे है, द स्पोर्स आर ट्राइलीड, मतलब जो है स्पोर ऐसे शेप में होंगे और एक ट्राइलीड वाला मार्किंग होंगे। अब ऐसे स्पोर्स क्या है, ये क्या है, ये म्यूसिस में तैयार होंगे। और ये क्या है, ऑलवेज दे आर बोर्न इन टेट्राड, दे आर बोर्न इन टेट्राड जो भी है, मतलब चार स्पोर एक साथ में रहेंगे। और ये ऐसे एक शेप में आ जाता है और इसमें एक ट्राइलीट मार्किंग
होता है। और ये ट्राइलिप मार्किंग से ही, मतलब ये वाले रीजन से ही जो है स्पोर, इसकी जो एग्जाइन है, ये बर्स्ट करके स्पोर ओपन होता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जो राइजोम की एनाटोमी है, ये वाली जो पोर्शन है, हम देख रहे हैं कि राइजोम के जो है, इट हैज गॉट एन आउटर सिंगल लेयर एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद काफी चौड़ा रीजन है कोर्टेक्स, ये वाला पोर्शन जो है। बट कोर्टेक्स में क्या है, हम देख रहे हैं कि अलग से कोई पित वाला रीजन नहीं है। दे हैव गॉट दिस टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल, जैसे हाफ सर्कल टाइप का वास्कुलर बंडल बना हुआ है। और जो वास्कुलर बंडल है, ये वाला देख रहे हैं हम लोग थोड़ा, इसको अगर जूम इन करें तो ये वाला पोर्शन, ये है राइजोम की एनाटोमी है, मतलब आउटर एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स में ऐसे वास्कुलर बंडल है। और वास्कुलर बंडल क्या है, ये है मेरी स्टीली वाला पोर्शन, जो है मेरी स्टीली। और जो वास्कुलर बंडल में क्या है, ट्रैकिड्स है और वेसल्स है। सो हम देख रहे हैं ये काफी एडवांस्ड फॉर्म में है, ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों ही इनमें है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एक्चुअली, इग्नोर दिस फॉर नाउ, ये वाला जो रीजन, ये वाले डायग्राम अभी इग्नोर करना। जस्ट लुक एट दिस इज द स्टिप्यूल, जो जो राइजोम है, उसके ऊपर से लीफ जो है, तो लीफ की जो बेसल वाला पोर्शन है, ये वाला ये वाला पोर्शन एक्चुअली स्टिप्यूल है। और ये वाला, it is showing this one. Here we have seen that there is a single layer of epidermis जो है। और जो कोर्टेक्स है, इसमें काफी ऐसे लैक्यूना बने हुए हैं, that is it is erenchymios। ये जो एयर सैक्स है, ये जो एयर सैक्स, और इसको लैक्यूना भी बोल सकते हैं। तो दिस इज बिकॉज जो वाटर में ये वाला जो जो अगर वाटर में सबमर्ज्ड है, तो ये वाला जो लीफ है, ये ऊपर ऐसे जाते हैं ना, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन बॉयंसी, दे आर हैविंग दिस एयर सैक और लैक्यूना। और ये अंदर में हम देख रहे हैं, दिस इज द वस्क्यूलर बंडल ऑफ द ऑफ द स्टाइप पोर्शन। अगर लीफ वाला पोर्शन देखते हैं, एक्चुअली ये सेराटोप्टेरिस थैलेक्ट्रोइडिस की जो है, सो वी आर सीइंग दैट द लीफ हियर and here also the leaf, they have a single layered epidermis जो है। और जो इसकी अंदर में जो मेसोफिल टिश्यू है, वो अलग से डिवाइडेड नहीं है इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, देयर इज ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ मेसोफिल। और हम देख रहे हैं ये जो अंदर वाला पोर्शन, it is undifferentiated mesophyll, and it has got a single layer of epidermis जो है। और ये दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए सिंगल पीना, एक सिंगल जो पीना है, इसकी वाला ये वाला पोर्शन है। और जो स्टिप्यूल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसकी ईयर कर्नल डिस्कस कर रहे थे, ये सारे जो है, ये मैंने लास्ट स्लाइड में ही दिखा दिया था। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि ओनली अबाउट द पीना ऑफ द फ्रॉन। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एक्चुअली द स्पोरेंजिया, जो पीना है, जो फर्टाइल लीफ है, उसके नीचे वाले पोर्शन में ये जो स्पोरेंजिया है, इसमें जो एन्यूलस बनी हुई है, ये वाला जो रीजन है, ये है वही थिक वॉल्ड सेल की जो लेयर है, एन्यूलस, दैट इज इट। सो ये जो एन्यूलस है, इसमें वॉल इतनी थिक रहती है कि जब अंदर वाला पोर्शन में जो स्पोरेंजिया में के अंदर जो स्पोर्स है, ये ज्यादा प्रेशर डालते हैं, तो ये वाला पोर्शन क्या है, अम, इतना मतलब थिक वॉल रहती है, तो ये वाला पोर्शन तो ब्रेक डाउन होगी नहीं। तो ये क्या करता है, ऑपोजिट वाला पोर्शन में प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो ये जो लिप वाला पोर्शन है, ओपर्कुलम वाला, तो उसमें
जो थिन वॉल्ड सेल्स है वो एक सेल से दूसरा सेल मतलब जो अटैचमेंट वो टूट जाता है। तो दैट इज व्हाई they have this the region opposite to the annulus that is called the operculum, they break open, और ये जो स्पोर है विद दिस मार्किंग, इसकी जो ट्राइलीट मार्किंग है हम देख रहे हैं, ये वाले स्पोर्स इजीली रिलीज्ड हो जाते हैं। सो दिस इज द morphology of the leaf, that is we are seeing there is no differentiation in the meristems। and अब देखते हैं जो इसकी इम्पोर्टेंस है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज ए रिसर्च मटेरियल, बट इसकी लैब यूज़ के अलावा भी इट इज़ वेरी ट्रेडिशनली इट इज़ यूज्ड एज ए फूड, स्पेशली जो ट्रॉपिकल रीजन के जितने भी आइलैंड नेशंस है, स्पेशली हम देखते हैं माडागास्कर, न्यू गिनिया, वियतनाम एंड मलेशिया, जापान है, इधर सब इट इज़ वेरी कॉमन एज ए फूड। Traditionally, it has been used as a food in Southeast Asia, also some African nations. But recent discoveries, recent lab research works, it has been found that some of these components, ingredients of the leaves that are eaten, the fronds or the leaf that are eaten, they have got some certain carcinogenic chemicals। मतलब carcinogens वो होते हैं जिसमें जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, एंड सम ऑफ द कंपोनेंट्स इन द एक्टिव कंपोनेंट्स इन द लीफ दे आर कार्सिनोजेनिक। सो वी शुड बी नॉट बी टेकिंग दिस लीफ in a very high amount because that will cause cancer। apart from that, the जो इसकी fronds है, it is also used as a source of manure for rice fields। why rice field? because rice field में ये जो ceratopteris, it grows very easily। Apart from that also, rice field mein we are also seeing another type of fern, that is azolla, that contains anabina in it। We know that anabina is a cyanobacteria, and cyanobacteria, what does it do? It actually fixes an atmospheric nitrogen, so basically they are the nitrogen fixer। so anabina contained in the inside the water fern azolla, it is also a fertilizer। so हम देख रहे हैं राइस फील्ड में apart from ceratopteris we are also getting azolla as a biofertilizer। so we are seeing that एक तो हो गया food, दूसरा हो गया biofertilizer, then it is also used as a very traditional source of medicine। जो ceratopteris है वो काफी एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में it is used as a traditional source of medicine। apart from that also इसकी डेकोरेटिव यूज भी काफी है, क्योंकि ये इट इज एक्वाटिक एज वेल एज सेमी एक्वाटिक फर्न है। तो काफी एक्वेरियम या टेरेरियम में ये डेकोरेटिव पर्पस में यूज होता है। these are the traditional use। now let's see what are the uses in modern day world। so ये this is also the same thing, that is the in the it is a source of food for fish। she's a source of food for fish as well as a shelter of fish, and it can be easily growing। we are seeing that it can grow at a very wide range of pH, जो 5 से 9 तक pH में ग्रो करता है। मतलब ये काफी एसिडिक से लेके काफी बेसिक तक ऐसे वाटर में ये ग्रो कर जाता है। और जस्ट बिकॉज द pH डजंट मैटर, सो एक्वेरियम में अगर मतलब कोई भी वाटर हो, कोई भी टाइप के फिश हो, it can be easily providing food and shelter to that type of fish। and also this is a very hardy, very fast growing species, so it is very also very economic to grow this in aquarium। जो कि सेराटोप्टेरिस रिकर्डी है, ये सारे लैब यूज में सेराटोप्टेरिस रिकर्डी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ लैब मैटर, बिकॉज इसकी ना जो म्यूटेशन बहुत इजीली हो जाते हैं। इट इज वेरी एमनेबल टू म्यूटाजेनेसिस। कोई भी प्लांट अगर प्लांट मटेरियल है एंड इट इज इजीली गेटिंग म्यूटेटेड, तो हम उस म्यूटेशन के वजह से हमको पता चल जाता है कि कौन सा
कौन सा जीन कौन सी पोजीशन में है, मतलब इसकी जो एंटायर जो जितनी भी सारे क्रोमोसोम है, इसकी जितनी भी क्रोमोसोम है उसमें कहाँ पे कौन सा जीन है, इसकी जीनोमिक एनालिसिस हम इजीली कर सकते हैं बाय दिस म्यूटाजेनेसिस स्टडी। एंड इनफैक्ट सी फर्न ये पेटेंटेड है, सी फर्न, सी सेराटोप्टेरिस रिकॉर्डी। तो इसमें फर्स्ट जो है जीनोम सीक्वेंस किया गया था। एंड just because this ceratopteris is a lepidosporangiate fern, or we know that most of the ferns they are leptosporangiate ferns, मतलब तो अगर सेराटोप्टेरिस की हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर चुके हैं, तो दैट सीक्वेंस कैन बी यूज्ड एज ए रेफरेंस टू अदर टाइप ऑफ फर्न्स ऑल्सो। कोई भी अदर फर्न लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न की अगर जीनोमिक सीक्वेंस करनी है तो वी कैन यूज दिस सेराटोप्टेरिस रिकॉर्डिस सीक्वेंसिंग एज अ रेफरेंस जीनोम। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जीनोमिक स्टडी हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेराटोप्टेरिस है, ये इसकी जो स्पोर है, इसकी जो स्पोर है वो जर्मिनेट करने के बाद जो गैमेटोफाइट तैयार करता है, वो फर्स्ट स्टेज में हार्माफ्रोडाइटिक रहती है, दैट आई एम डिनोटिंग बाय एच। देन एंथ्रीडियोजन के मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंथ्रीडियोजन this is converted to a male gametophyte। मतलब पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही थे, पर अब जो है सारे मेल हो गए। क्यों? क्योंकि एंथेरिडियोजन जो है ये एक मेल हार्मोन के हिसाब से काम करता है। दिस इज सो हम देख रहे हैं कि ये जो हर्माफ्रोडाइट से मेल हो गया है, ये एक एपिजेनेटिक चेंज है, मतलब आउटसाइड द जीनोम चेंज हो रहा है, जिसके वजह से ये हम डिफरेंसेस इन द मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी देख रहे हैं। तो दिस फेनोमेना of getting altered by external factor, here in this case it is the anthridiogen, there can be other type of pheromones also that can cause alternation, that is the epigenetic changes. So this phenomena helps in understanding the epigenetic changes in other type of leptosporangiate fern also। और इसमें हम इवोल्यूशनरी एडवांटेज भी देख रहे हैं, क्योंकि जो हर्माफ्रोडाइट है उसमें क्या हो रहा है, हर्माफ्रोडाइट में हर्माफ्रोडाइटिक जो गैमेटोफाइट है, जो हर्माफ सॉरी जो हर्माफ्रोडाइटिक गैमेटोफाइट है, उसमें हम क्या देख रहे हैं, उसमें मेल प्लांट भी है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक ही गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल दोनों ही है। सो ये क्या हो रहा है, सेल्फिंग हो रहा है। सेल्फिंग के वजह से क्या होता है, होमोजेनिटी हो जाता है, होमोजेनिटी हो जाता है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है। पर अगर जो हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट से एंथेरिडियोजन हो रहा है, तो जो मेल वाला पोर्शन आ रहा है, तो क्या है, आ, अपना जो प्लांट है ये कंप्लीटली सारे मेल हो जा रहे हैं, तो क्या है, ये फिर इसको आउट ब्रीडिंग करना पड़ेगा। तो कोई दूसरा वाला सेराटोप्टेरिस जो कि हर्माफ्रोडाइट है अभी तक, उसके साथ क्रॉस हो रहा है। तो वी आर गेटिंग व्हाट वी आर गेटिंग इज वी आर गेटिंग आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग अगर हो रहा है तो हेटेरोजेनिटी हो रहा है, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ रही है। तो धीरे धीरे ऐसे करके हम वी कैन सी दैट दिस इज एन एवोल्यूशनरी एडवांटेज। क्यों एवोल्यूशनरी एडवांटेज है, क्योंकि अगर होमोजेनिटी है तो क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है। अगर हेटेरोजेनिटी है तो क्या है कि इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ रही है। तो इन केस ऑफ एनी इकोलॉजिकल कैलामिटी, देन अगर मतलब प्लांट इज गेटिंग स्ट्रेस्ड, जो होमोजाइगस और होमोजेनिटी जहाँ पे है, वो वाले प्लांट ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे rather than the plant that is heterogeneous। सो हम ये भी देख रहे हैं कि इवोल्यूशनरी एडवांटेज है इसकी, मतलब अगर आउट मतलब
फर्स्ट तो इसकी जो हर्माफ्रोडाइट है, इसके बाद जो मेल फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब मेल हो रहा है तब आउट क्रॉसिंग हो रहा है, तो तब ही वी आर गेटिंग एन आउटब्रीडिंग, दैट इज हेटेरोजेनिटी. So we are seeing that apart from being a model organism for genetic study, for evolutionary study, for epigenetic study, इसके अलावा भी it is used as a model organism for अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चरल डिटेल. जो भी स्ट्रक्चरल डिटेल है, मतलब इसकी सेल वॉल कैसी है, इसकी दूसरे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इसको देख के हम नॉट ओनली वी कैन अंडरस्टैंड about the structural detail of other fern, but also about the vascular plant. ऑल्सो क्या है, इसकी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम देख सकते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल काफी शॉर्ट है, तो we can easily study its alternation of generation, or it will act as a base study for all other leptosporangiate fern also, जिसकी alternation of generation हम इसको रेफरेंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं. इसकी पॉपुलेशन डायनामिक्स भी हम स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इसकी जनरेशन टाइम जो है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत अर्ली, मतलब बहुत कम टाइम में हो जाता है, क्योंकि ये एनुअल, इट बिहेव्स एज एन एनुअल अंडर नॉर्मल कंडीशन. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये काफी म्यूटाजेन, मतलब इफ यू आर एडिंग म्यूटाजेन टू द सेराटोप्टेरिस, इट इज इजीली गेटिंग म्यूटेटेड. सो इसकी जो है माइटोटिक डिसरप्टर, जो हर्बिसाइड्स के वजह से इसका जो माइटोटिक डिसरप्शन हो रहा है, और तो इसकी भी हम स्टडी इफेक्ट जो भी है वो हम स्टडी करके, हम इसकी म्यूटाजेनेसिस स्टडी करके इसका जेनेटिक जो सीक्वेंसिंग है, ये भी हम इजीली मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं. और क्या है कि दिस सेराटोप्टेरिस रिकार्डी, ये एक ऐसी फर्न की स्पीशी है दैट वाज जर्मिनेटेड इन स्पेस में, स्पेशली ये वाली मिशन में, जो इट वाज टेकन out and it was germinated in space, so it was seen that it can be under controlled condition, it can grow in other planet also. So apart from that, जो एग्रोबैक्टीरियम है, ये जो बैक्टीरिया है, दैट कंटेन्स द टीआई प्लाज्मिड जो है, that causes the crown and gall disease in many many type of angiospermic plant. So ये एग्रोबैक्टीरियम जो है, इसकी जो टीआई प्लाज्मिड, that is capable of transforming the ceratopteris halictroides, एंड इसकी जो स्पोर्स, अपार्ट फ्रॉम सेराटोप्टेरिस, टेरिस भी और एक फर्न है जिसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और दैट इज एक्चुअली यूज फॉर स्टडिंग, क्योंकि जो टीआई प्लाज्मिड है, इट इज यूज्ड एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आल्सो. सो अगर मतलब हम as because it can be transforming Ceratopteris and Pteris. So these plants can be used in genetic engineering also. And जो है इसकी इनहेरिटेंस एनालिसिस अगर देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो एग्रोबैक्टीरियम से जो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, वो सेकेंड जनरेशन में भी दिख रहा है. तो दे आर, वी कैन सी दैट इट इज अ वेरी स्टेबल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गैमेटोफाइट है, जो कॉर्डेट शेपेड, जो हार्ट शेपेड गैमेटोफाइट है, ये भी डायरेक्ट डीएनए और आरएनए को अपटेक कर सकता है. मतलब नॉट ओनली द स्पोरोफाइट, बट जो गैमेटोफाइट है, ये भी, ये दोनों ही ट्रांसफॉर्म्ड हो सकता है बाय एग्रोबैक्टीरियम. So we are seeing that this is a potential candidate for genetic engineering also. So why do we want to study this? Apart from very important, like it is used in genetic study, it is used in evolutionary study, it is used in epigenetic study, it can be used in biotechnology. तो ये सब हम कर सकते हैं क्योंकि it is
इट इज वेरी इजी टू ग्रो इन लैब कंडीशन, क्योंकि जो स्पोरोफाइट है इसकी, ये काफी स्मॉल इन साइज है, and because it is small in size it can be easily grown in lab। और इसकी जो लाइफ साइकिल है ये काफी शॉर्ट है। और जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट्स जो है इसकी मतलब जो स्पोर फॉर्मेशन होने के बाद जो गैमेटोफाइट है वो इट कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड, मतलब जो हार्माफ्रोडाइटिक गैमेटोफाइट है वो सेल्फ फर्टिलाइज करके बहुत जल्दी स्पोरोफाइट क्रिएट कर लेता है। मतलब इसकी जो सेक्स लाइफ साइकिल है ये काफी शॉर्ट है। मतलब द स्पोर से गैमेटोफाइट इज गेटिंग फर्टिलाइज्ड एंड प्रोड्यूसिंग अनदर फर्न। ये जो एंटायर लाइफ साइकिल है ये काफी शॉर्ट पीरियड में हो जाता है। सो इसकी लाइफ साइकिल काफी शॉर्ट है। जो इसकी गैमेटोफाइट है ये इजीली सेल्फ फर्टिलाइज कर जाता है क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइटिक भी है। और ये जो स्पोर है द स्पोरोफाइट, ये स्पोर प्रोड्यूस करता है। जो ये स्पोरोफाइट है ये वाली है गैमेटोफाइट और ये वाली है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो टेट्राहेड्रल स्पोर तैयार करता है, दैट स्पोर कैन बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर फॉर ए क्वाइट लॉन्ग टाइम। और जब वायबल स्पोर है वो इट इज गेटिंग ए परफेक्ट क्लाइमेट टू फॉर ग्रोइंग, then it can take only 6 weeks to germinate into another new gametophyte। So from that also, the sporophyte can also be vegetatively propagated using the leaf bud। हमको पता है कि लीफ के जो एक्सिस में जो डोरमेंट बड था उसको हम उससे हम इजीली वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर सकता है। और जो रूट है, रूट में जो जिमा है उस वो भी वी कैन यूज इट फॉर प्रोपागेटिंग दिस पोरोफाइटिक जनरेशन। सो अनदर एंड इसकी काफी स्टेराइल म्यूटेंट्स भी है, मतलब ये इजीली म्यूटेशन कर सकता है। सो ऑल दिस रीजन इट इज अ वेरी गुड suitable model organism। So this was all about this first part of the video, or next part mein I'm going to discuss about the reproduction and life cycle of Ceratopteris। If you have any query regarding this Ceratopteris, you can write it in the comment section, or if you have any other doubts regarding any of the other videos or you want me to make any new video, please write it in the comment section। If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and also do subscribe because your subscription it encourages me। Thank you for watching this video, and I do make videos on this botany related topic। और इसकी सारे जो आप if you go to my channel you can see the playlist, different playlist के अंदर में algae fungi या ऐसे अलग अलग बहुत सारे topics मैंने डाल के रखे हैं। You can go to my channel and watch those topic। Thank you for watching this video।